Hi everyone. This video is very special because in this video we have Mohit Chaudhary, who is currently hiring for Aditya Birla Capital. In this video he is sharing his experience with American Express. Not just that, he's looking for some great talents for HR, marketing, sales, or any type of field you want. You can even ask him for referral by contacting him on his phone number, which will be displayed in the further video. So make sure you watch the entire video, especially if you are looking to get the interview experience for American Express in the marketing and sales field, or if you are looking to get hired in Aditya Birla Capital Group. Mohit in this video and Venkat in the last video got in touch with me just by filling the form that is mentioned in the description box. So if you have cracked any interview and you would like to share the experience with the world, all you have to do is fill the Google form that is mentioned in the description box and I will get in touch with you. My name is Mohit. I stay in Havra, West Bengal. I have done my BCom from Jain College, which come under Calcutta University, and then I pursued MBA from BIBS, which come under Vidyasagar University. I have worked in two companies. One is American Express. Then I got a job for my college campus. Currently, I am working with Aditya Birla Capital, which I got through my own sources. That's amazing. So, a little more detail about your education background would be really helpful. I started my class 10-12 from ICSE board from school, Central High School. After that, I have done my BCom now. When they were asked about myself, my aims, my future plans, my career study and everything. Second was the aptitude test. Over there were given logical reasons, mathematical questions and everything. After cracking that, we had a final round of interview where we judged with our presentation skills how can we sell something. Like we have to sell something over the phone only, a pen or anything which can be sold. So this was the round which we went through for our company. So what was the questions that were asked and what kind of answers did you give to those questions? So you mentioned about selling a pen, right? That was one of the questions. And how did you actually sell it? So what was the gap between these interviews? Was there a lot of gap between the first round and the second round, or the second, third round? What was it like? A gap between first and second round, not much, around 2-3 days. But yes, the gap between second and the final round was huge. It was around 8 to 9 days because it took a lot of time to get the best candidate for the final round. And after that, we got our offer letter from the campus itself. Amazing. तो मतलब काफी मेहनत करनी पड़ी थी placements के लिए. American Express, as you can see, out of 15, 4 players selected. You have to be the best out of there to get selected. And interview over the phone is very difficult. You don't know what a person gets you or not getting you. If we are face to face and by the reaction of the person, what he thinks or not think. But over the phone, it's very hard to know what the thinking about yourself, about you and everything. Correct. अभी अपन ने बात करी थी उनके प्लस पॉइंट्स के बारे में. Now this is also a negative point कि they can't see you, but you also can't see them. तो वो क्या सोच रहे हैं कि बंदा कैसे नहीं, आपको नहीं पता. अगर आप उनका रिएक्शन आप देख सकते हो कि वो क्या सोच रहे हैं. फेस टू फेस बात कर रहे हो तो चाहे वीडियो कॉल हो या उनके ऑफिस में जाके बात कर रहे हो, तो वो फोन है सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है. अमेजिंग. ये बात आपने बहुत एकदम करेक्ट बोली. इसका समथिंग तो मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज दीज डेज दे प्रेफर टू डू अ वीडियो कॉल ताकि थोड़ा इन पर्सन टाइप का फील आए. एटलीस्ट वी बोथ कैन सी ईच अदर्स रिएक्शन. उसके even the candidate's reaction and your instant reaction test, like a situation is given, how would I react to that situation? So that's very time which will we select is the important thing. अगर टाइम ज्यादा है तो सोच सकते हैं कि हाँ ये सेट हम कर सकते हैं.
बट टाइम कम है तो हमको जल्दी से करना पड़ता है, और वही चीज मेन होता है, क्योंकि वही आपका क्या पर्सन वो आप बता पाएगा। 5 मिनट में वो सब चेक करने में समझ में आता है कि हाँ ये बंदा ऐसा सोच सकता है, तो ये सब चीज था। करेक्ट करेक्ट। तो यू मेंशन्ड 50 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस? 50 and how much time was given? 1 hour. 1 hour 50 questions. So almost मतलब 1 minute में you have to solve a question and move on. That's the thing, because मैथ्स फिर वो सब हो जाता है, बट जो आते लोग उसमें ना कि ऐसा सिचुएशन दे दी है कैसे रिएक्ट करोगे, वही मेन था, वही सबसे ज्यादा था उसमें। करेक्ट। तो मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा थे या लॉजिकल टाइप के, या फिर लॉजिकल? मोस्टली लॉजिकल, जो कि सिचुएशन बेस्ड, कि एक पर्सन आपके पास आया है, उसे सेल नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, वैसे टाइप क्वेश्चन आते थे। अच्छा, तो वो सेल्स पे ही बेस्ड लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट था। तो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? The thing is, I did my means back research exactly, क्या पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते हैं, तो हम गूगल सर्च किए, वैसा क्वेश्चंस निकाले एंड वो सब क्वेश्चंस देख रहे थे कि ये सब चीज कर सकते हैं। मैथ्स वो समथिंग आई ऑलवेज लव टू डू, तो मैथ्स हम कर लेते थे। लॉजिकल रीजनिंग भी हम प्रैक्टिस किए हुए हैं, बिकॉज हम बहुत बार कॉलेज में भी हुआ हुआ है, कैट मैट का भी हम बुक दिए प्रिपेयर किए हुए हैं, तो वो सब प्रिपेयर हो जाता था, तो वो सब डिफिकल्ट नहीं हुआ मेरे लिए। तो अगर किसी को सजेस्ट करना करोगे कि अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए तैयारी करना है, तो हाउ वुड यू सजेस्ट देम? कोई स्पेसिफिक साइट या फिर कहीं से दे कैन स्टडी? बिकॉज आप साइट जाके आप लॉजिकल रीजनिंग ठीक कर सकते हो, मैथ ठीक कर सकते हो, बट सिचुएशन बेस्ड आंसर आपको इंस्टेंटली ठीक करना पड़ेगा। तो आप ना जैसे सोच सकते हो उधर जल्दी अपना दिमाग दौड़ाइए, ताकि आप वो सब आंसर क्रैक कर पाए। मेन वही आंसर रहेगा आपके लिए कि एक टीम में आप जो फील कर रहे हैं, आप उसे कैसे मोटिवेट करोगे या तो बाहर निकाल दोगे, ये सब क्वेश्चन आपको इंस्टेंटली आना चाहिए। अमेजिंग। तो इसके लिए तो अपन को अलग ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। यू नीड टू थिंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिक्रूटर कि इसमें इस केस में व्हाट काइंड ऑफ आंसर वुड ही वांट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू वुड एक्चुअली डू। करेक्ट। और टाइम शॉर्ट है तो आप सोच नहीं पाते हो, आपको इंस्टेंट करना पड़ता है। तो काम रहिएगा, जो भी आंसर कीजिए कामली कीजिए, बाकी इजी है, ट्राई करना डिफिकल्ट नहीं हो। जो डिफिकल्ट है वो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है। फिर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में आउट ऑफ 15 अराउंड 8 पीपल को निकाल दिया, 7 people went through the next. That's some good advice. So you mentioned about the aptitude test. Can you give a more detailed about the interviews that you went through? Okay, the first set of interviews was a general interview, like about yourself, क्या educational qualification है, क्या आपके घर वाले करते हैं, आप एमएनए में आना क्यों चाहते हो, the most important question, why do you want to come to एमएनए? ये क्वेश्चन का आंसर सही कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। इसका एक ही है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हो। इस सवाल सभी सही जवाब है, बस कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो वो में। करेक्ट। तो दिस द फर्स्ट राउंड वाज फॉर 1 hour? नहीं, ये टेलीफोनिक राउंड हुआ था, तो इट डिपेंड्स अपॉन द आप कैसे बात कर रहे हो, आप कितने जो एचआर है उसे एंगेज कर पा रहे हो। एचआर जितनी एंगेज हो पाए तो ऑप्शन दोगे। तो अगर आप अच्छे से बात किए या आप डिसइंटरेस्ट साउंड किए तो वो 1 मिनट में खत्म हो सकता है। आप अच्छे से बात कर रहे हो तो 6 मिनट में टन सकता है। So the more you interest the HR, it will go to that person. Okay, that sounds reasonable. नहीं, टेलीफोनिक राउंड हुआ पहले। टेलीफोनिक राउंड पहले हुआ, ओके। उसमें से 8 सिलेक्ट हुए, 8 को एप्टीट्यूड टेस्ट की लिंक आई और एप्टीट्यूड टेस्ट में से 4 फाइनल सिलेक्ट हुए। एप्टीट्यूड टेस्ट में से 6 लोग सिलेक्ट हुए, जिन्हें एक और राउंड हुआ, दैट वाज द फाइनल टेलीफोनिक राउंड। टोटल 3 टेलीफोनिक राउंड। ओके। क्वेश्चंस, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट और तीसरा
बहुत सीरियस बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, ये तीसरे राउंड के बारे में गिव मी मोर डिटेल्स, किस टाइप का था, कैसा था? ओके, तीसरा राउंड वाज विद द एरिया मैनेजर। उसने आपको कॉल किया, वो आपसे पहले नॉर्मल सवाल पूछे कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो जाने, और उसके बाद उसने आपको एक सिनेरियो दे दिया कि सेल मी अ पेन, सेल मी अ वाटर बोतल, सेल मी एनीथिंग। तो ये भी सेल मी अ कार्ड, चलिए हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बोलते हैं, तो सेल मी अ क्रेडिट कार्ड। हुआ यही मेन राउंड था क्रैक करने का, बिकॉज व्हाट्सएप राउंड इजी है, आप क्रैक कर लोगे, बट टेलीफोनिक राउंड में कन्विंस करना लोगों को चीज बेचने के लिए इतना इजी नहीं होता, तो वो कन्विंस करना ही मेन। करेक्ट। तो आपको सेल करने के लिए क्या बोला गया था? पेन? मुझे पेन दिया गया था। एंड अगेन मतलब डिटेल उसमें कि अभी आपको कोई बोले पेन सेल करने के लिए तो आप कैसे करोगे? ओके, तो सबसे पहले मैं नाम बताया था, तो मैं बोला कि टॉकिंग 100%। उसके बाद मैंने बोला कि सर आपका मीन्स आप क्या पसंद है, आपको लिखना पसंद है, आप क्या करते हैं इसके बारे में जाना। अगर वो जो लिखना पसंद है और वो हाई पोस्ट में मैनेजर है तो जनरली उन लोग अच्छा पेन लेते हैं, बट अगर उसी पेन से वो हर डॉक्यूमेंट में साइन करे और अपना पोएम भी लिखे, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए मैंने बोला कि सर वो सब पेन आप यूज कर सकते हो फॉर डॉक्यूमेंट साइनिंग। ये सस्ता पेन है, 10 पेन है, 5 पेन है, ये अपने काम में ले सकते हो कि आप कोई बुक लिख रहे हो या पोएम लिख रहे हो, तो उसमें काम क्रैक नहीं कर पा रहा। तो जब इस बारे में आया, यहाँ पे था कि जाके आपको एयरपोर्ट में सेल करना है, मैंने कहा चलो ठीक है अप्लाई करते हैं, कुछ सीखने मिलेगा, अगर नहीं होते कुछ सीखने मिलेगा। पहला राउंड आया, टेलीफोन राउंड आया, बात किए, वो अराउंड मेरा साथ चला 5-10 मिनट, क्योंकि एचआर बहुत साफ पूछे थे मेरे से। तो वो जैसे ही करते करते जैसे फोन रखा, आफ्टर फ्यू डेज मेल आया कि ये लोग बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। बहुत अच्छा बात, नाम आ गया। उसके बाद मैं एक राउंड देने गया, एप्टीट्यूड देने गया। एप्टीट्यूड में कॉन्फिडेंट था कि हाँ वो हम कर लेंगे, वो मेरा फोटे में आता है, आई लव एप्टीट्यूड लॉट। तो एप्टीट्यूड किया, वो राउंड क्लियर किया, और जब फाइनल राउंड में कॉल बहुत दिन तक नहीं आया तब ये लगा कि क्या हो गया, कुछ खबर नहीं, क्या है पता नहीं। अपने कॉलेज वालों ने फोन किया, उन्होंने पूछा, उन्होंने कॉल आए, उन्होंने ठीक है वेट करो। और फिर जब वापस कॉल आया फाइनली, तो हम बातचीत करने के बाद एंजाइटी हो जाती है, कॉल क्यों नहीं आ रहा, एप्टीट्यूड में नाम आ गया, क्लियर हो गया है, तो कॉल क्यों नहीं आ रहा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर जब कॉल आया और सिलेक्शन मिला तब शांति लग जाओ, हाँ अच्छा है कि हो गया सिलेक्शन। तो कंपनी फैब कंपनी, क्रेडिट कार्ड सेल्स इट्स अ फैब कंपनी, राइट। मतलब this is actually one of the flagship products of any bank or any such company, you know, the credit card and stuff like that. So that the main thing that drives sales. Exactly. Plus the thing is Amazon का ब्रांड भी है, बस प्रेस्टीज कार्ड भी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने काम किया है, मैं मतलब सब बहुत जानता हूँ, जो नॉर्मल इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। You need to have been a higher position to afford. Right. क्योंकि वहाँ बहुत सारे प्रेस्टीज कार्ड है जहाँ प्रेस्टीज मिलती है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड है। आपको जाना है तो हम बोले दिस इज अ वेरी नाइस कंपनी टू गो। बस कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा आपको इंटरव्यू, दैट्स द मेन थिंग। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कॉन्फिडेंस तो आई थिंक हर जगह ही मैटर करता है, कोई भी इंटरव्यू हो, नॉट जस्ट अमेरिकन एक्सप्रेस, बट सबसे पहली चीज रिक्रूटर कॉन्फिडेंस ही देखता है। एग्जैक्टली। अगर फेस टू फेस भी है तो बॉडी लैंग्वेज भी देखेगा, बिकॉज आपका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। आप बात करने में चाहे जितने भी अच्छे हो, अगर बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है तो आपको कॉन्फिडेंस है नहीं आपको। तो व्हेन यू फाउंड आउट कि आपका अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू है, तो did you start preparing? कितने दिन प्रिपेयर किया, क्या किया, और you were like ठीक है जो भी होगा फोन पे बात कर लेंगे, देखा जाएगा? नहीं, क्योंकि जब टेलीफोनिक राउंड के बारे में पता आया तो सबसे पहले रिएक्शन था कि क्या पूछ सकते हैं, फेस टू फेस हो तो समझ में आता है यार ये सब पूछ सकते हैं, और टेलीफोनिक राउंड सेकंड लगा कि अगर नेटवर्क बिगड़ गया, क्योंकि भाई नेटवर्क है, इश्यू हो सकती है,
अगर वो बिगड़ गया तो आपको मौका से चला गया। तो वो सब दिमाग में डर आ रहा था। और देन प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, चाहे टेलीफोनिक हो, फेस टू फेस हो या वीडियो कॉल हो, आपको प्रिपेयर करना जरूरी पड़ेगा। कंपनी का रिसर्च किए, कंपनी क्या करती है, कौन सा वो सब फ्लैगशिप कार्ड है, कौन सा उनका प्रेस्टीज कार्ड है, तो कार्ड के नाम के बारे में पढ़ा, उसे कितना प्राइस है, क्या क्या ऑफरिंग करते हैं वो सब बारे में पढ़ा, तो उनके कितने कस्टमर्स है, कितने लोग कहाँ पर है, ये सब बारे में समझा, कंपनी के ऊपर गो किया और फिर पहले वैसे प्रिपेयर किया अपने आप के लिए। क्योंकि फर्स्ट राउंड इज समथिंग विच इज क्रूशियल, तब वो क्रैक करना ही पड़ेगा ताकि आप और आगे बढ़ पाओ। साथ ही साथ आपको काम पड़ेगा, कॉल आ गया, आप नर्वस आ गए टेलीफोन में भी, तो कुछ होगा नहीं, तो काम भी रहना पड़ेगा और रिसर्च करना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना हो। इंटरव्यू में जाने के लिए यू हैव टू डू रिसर्च और डिटेल रिसर्च और रिसर्च। कि पहले किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, अपने कॉलेज में ही जो आए हैं वो किस टाइप के रोल्स के लिए आए हैं, क्या किया था, उस टाइप की रिसर्च, राइट? सीनियर से भी बात की है कि जो लास्ट टाइम भी आए थे लेने के लिए, जो उसमें क्रैक किए थे, Jan 4 22 21 ओके, गॉट इट, प्लीज कंटिन्यू। या जून 21 में स्टार्ट हुआ था ये मेरा जर्नी। 13 जनवरी को हम ऑन बोर्ड हुए थे। हम लोग को स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, हमको बोला गया था कि ये सप्लीमेंट्री कार्ड है, जो ऑलरेडी होल्डर है कार्ड के उनको बेचो। वो कॉल दे, मैं पीछे सप्लीमेंट्री कार्ड होते हैं, सप्लीमेंट्री कार्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड्स है उन कंपनी की, जो ऑलरेडी होल्डर है उनको मिलते हैं, बाकी किसी को नहीं मिलते। करेक्ट। ऑलरेडी कार्ड होल्डर है तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई वो कार्ड सेल करने में। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग चला जो कि अराउंड 9 डेज था, जहाँ हम लोग को कंपनी के बारे में बताया गया, उनके क्या क्या प्रोडक्ट है वो बताए गए। बट उसके बाद जो उनका सबसे मेन प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जो दैट इज प्लैटिनम चार्ज कार्ड, वो उन लोगों का सबसे मेन प्रोडक्ट है, दैट्स द बेस्ट प्रोडक्ट। बट वो हर कोई सेल नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन एग्जाम देना है। अच्छा, जैसे मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, तो उनका ट्रेनर को हमको ऐसे कन्विंस करना है कि वो कार्ड खरीदे। क्यों खरीदे, क्या बेनिफिट्स है, सारे बेनिफिट्स बोलना था, और इसमें बहुत बेनिफिट्स थे, अराउंड 30 to 35 बेनिफिट्स थे। वो सारा बेनिफिट पिच करना पड़ा उन लोगों को, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दैट एग्जाम, आई विल से। और सब एग्जाम क्रैक करना इजी है, बट जब ज्वाइनिंग करने के बाद वो क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, वो हर कोई क्रैक नहीं कर पाता। दैट्स द बेस्टेस्ट कार्ड एवर एवरी निकाल सकते हैं, विद लॉट ऑफ वैल्यू एंड नथिंग मोर देन दैट। ज्वाइनिंग हुआ मेरा जनवरी 13 को, अराउंड 5 to 6 डेज हम लोग को बोला गया सप्लीमेंट्री कार्ड बेचो, कि हम कैसा काम करते हैं वो जान पाए। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट हुआ, which were for around 9 to 10 days. And after training हम लोग को पे जाना पड़ा, कार्ड बेचना पड़ा। अच्छा, तो this went on for how long? ये certification in how much time did you do the certification? एक दिन का होता है। अच्छा, उसकी तैयारी वगैरह भी करनी आपको डेट दे देता है, आपको डेट दे दिया, सपोज आपको 9 दिन का ट्रेनिंग हुआ, उससे एक हफ्ता बाद डेट दे दिया कि आपको एग्जाम है, आपको पूरा वो पढ़ना कार्ड के बारे में, उसको कैसे पिच करना है वो अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो होने के बाद आपको एग्जाम होगा। और वो एग्जाम तो इजी नहीं है क्रैक करना, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो ट्रेनर है, वो बहुत सवाल पूछता रहता है, क्योंकि वो आपको ऊपर जज कर रहे हैं। वो सबसे मेन कार्ड है, अगर आप वो कार्ड ट्रेनर को नहीं बेच पाओगे तो वो कार्ड किसी को नहीं बेच पाओगे, क्योंकि वो कार्ड जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उन लोगों को हमको सेल करना रहता है, एंड उन लोगों को सेल करना मतलब आपको पूरा प्रॉफिट होना पड़ेगा। वो फायदा देखेंगे क्या फायदा मिल रहा है, क्यों कार्ड ले, तो वो एक डिफरेंट चीज। अमेजिंग। तो फिर दिस वाज द आफ्टर सर्टिफिकेशन क्या हुआ? आफ्टर सर्टिफिकेशन कुछ नहीं, अपना काम स्टार्ट करो, लोगों को कॉल करो या अपॉइंटमेंट फिक्स करो, जाओ फील्ड सेल्स करो। इट वाज फुल सेल्स फील्ड जॉब, क्योंकि
ये एयरपोर्ट बंद था तो एयरपोर्ट में जा नहीं पा रहे थे, तो हम लोग को फील्ड में उतरो, लोगों से मिलो, कार्ड सेल करो। दैट वाज आवर मेन गोल। अच्छा, तो दिन भर मतलब बाहर इन द मार्केट, और कहाँ सेल करना है? मार्केट में कोई भी ऑफिशियल जगह चल जाओ जहाँ पे लोग नीचे उतर के या चाय पी रहे हो या कोई भी ऑफिस में घुस जाओ सेल करने के लिए। अच्छा, सेल्स जॉब ऐसे ही होता है, या तो ओवर द कॉल आप बात करके सेल्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फील्ड में जाके मिल के सेल करके आओ। सेल्स जॉब ऐसे ही होता है। अच्छा, और ये जो शॉपिंग मॉल में अपन बूथ्स देखते हैं, जैसे अभी मैं कल ही गया था तो मैंने देखा था SBI कार्ड का बूथ लगा हुआ था, ये क्या कंपनी स्पॉन्सर्ड ही होता है क्या? ये फुल्ली कंपनी स्पॉन्सर्ड होता है। ये इसको बोलते हैं बीटीएल एक्टिविटीज, बिलो द लाइन एक्टिविटीज बोलते हैं इसको। यहाँ पे मॉल्स में जो कि बड़ी कम लोग रहते हैं एंड आप ज्यादा लोग से मिल नहीं पाते, जो लोग मॉल में आए उनसे मिल पाते हो, तो ये बनता है आपके लिए, तो आपको लोगों को जाके 5 रुपए देना पड़ता है। तो दिस इज अ बीटीएल एक्टिविटीज फॉर द SBI हुए। मैंने खुद किया है, मैं खुद मॉल में जाके सेल किया हूँ। और मॉल पे हम जाते थे सेल करने। बेसमेंट में हम लोग कियोस्क बनाया था, हम लोग को अराउंड 5-6 घंटा वहां पे खड़ा रहना पड़ता है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है सेल्स, आप बैठ नहीं सकते हो, यू हैव टू कीप स्टैंडिंग। अच्छा, sounds quite tough. कौन सी सिटी में were you placed? कोलकाता, नाइस सिटी। हाँ, और you used तो how what was it like? कि नहीं, मजा नहीं आया? नहीं, देखिए मजा तो बहुत आया, बिकॉज कोई भी क्रेडिट कार्ड सेल्स में मजा तो बहुत आता है। मेरा जर्नी इतना अच्छा, बिकॉज हम बोले कि अप्रैल में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, वरना हमको और इस कंपनी में काम करने में और मजा आ रहा था, बट अप्रैल में ड्यू टू माय फैमिली हेल्थ इश्यूज हमको छोड़ना पड़ा। अच्छा, समथिंग इश्यूज इन माय फैमिली, जिसके कारण हमको अप्रैल में छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो 4 months में ही यू हैड टू लीव अमेरिकन एक्सप्रेस बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस? या मैं घर में कुछ इश्यू हो गए थे, हेल्थ इश्यूज हो गए थे, कोविड के इश्यूज हो गए थे घर में, तो जिसके कारण मुझे छोड़ना पड़ा। बट कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया? कंपनी सपोर्ट करती है, मिनिमम नहीं करती है, बट द थिंग इज मैं सेल्स में निकल नहीं पा रहा था। ओके, मैं सेल्स में निकल नहीं पा रहा था एंड कंपनी यू हैव टू गो टू सेल्स, तो सेल्स जॉब है ये तो। एंड क्योंकि घर में इश्यू हो गए थे तो हम मेंटली काम नहीं कर पा रहे थे, जहाँ भी फिल्म पा नहीं रहे थे। decided to hang my boats from the company. Otherwise, I'm not a specific fab company to join. अच्छा, तो you had to leave the company and then उसके बाद after everything, after once the period was over, you decided to try some other company, right? Definitely, because घर में कौन बैठना चाहता है? After doing MBA, no one want to sit at home. तो मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं ना कहीं जॉब देखे जाए। हम बीच में 1-2 कंपनी में ऑफर आया, बट वो अच्छी कंपनी नहीं थे, तो हम उनको ऑफर ना कर दिया। एंड देन फाइनली जॉइन आदित्य कैपिटल। अच्छा, नाइस। काफी सैड है, मतलब अब यू गेट प्लेस्ड इन अ कंपनी फ्रॉम कैंपस एंड देन यू हैव टू लीव ड्यू टू पर्सनल रीजंस और कंपनी डजंट कंसिडर दैट। तो ये थोड़ा सा एम्प्लॉय ने ये अवार्ड जीता है, उसके बेसिस पे ऑब्वियसली उसका प्रमोशन वगैरह सब डिसाइड होगा। बट उसके अलावा भी कुछ अगर अपन इंसेंटिव बोले कि हर कार्ड के उसका कुछ अलग इंसेंटिव भी होगा क्या, कि दिस इज 30,000 पर मंथ इज बेसिक, प्लस अगर आप ये वाला कार्ड सेल करो तो इस पर आपको इतना कमीशन मिलेगा, उस पर इतना मिलेगा? वो तो जैसे कि प्लैटिनम चार्ज कार्ड सेल करने पे इफ यू सेल अराउंड 60% ऑफ डेड कार्ड, तो आपको अराउंड 7,000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। तो वो सबसे बड़ा कार्ड था, और वैसे ही हर कार्ड को डिजाइन किया गया था कि आप जितना कार्ड सोर्स कर पाओगे उतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। पर आपका वो टारगेट पे होता है कि आपको एक मंथ में आपको मिनिमम 8 कार्ड सेल करना पड़ेगा। 8 से ऊपर सेल करने के बाद आपको इंसेंटिव बढ़ से। इट इज द मिनिमम बेंचमार्क फॉर द इंसेंटिव पार्ट। ओके, क्या बताया, कितने सेल करने पे कितना मिलेगा, क्या था? Can you repeat the figure? 8 sale in a month. 8 Okay. card sale in a month.
ओके, और उसके ऊपर कितने करने पे कितना क्या मिलता था? That depends, वो कंपनी इजीली बोलती नहीं थी. कंपनी इंसेंटिव बोलेगा नहीं आपको, तब इंसेंटिव मिलेगा. वो कोई भी कंपनी में डायरेक्ट कुछ नहीं बताएगी. अच्छा, बस आपको मिलेगा. रैंडमली, क्वाइट वेग. क्योंकि देखिए वो सेल्स पार्ट है ना. हाँ. तो सेल्स पार्ट में इंसेंटिव पार्ट हर कंपनी ने बता लोगों को, तो कुछ वो नहीं रहेगा, लोगों को अर्ज नहीं रहेगी. इंसेंटिव, हाई इंसेंटिव लोगों को बोला जाता है, मेंटेन रहे कि हाँ कुछ हाई इंसेंटिव मिलेगा, और सेल करते हैं. अच्छा. अलग परसेंटेज था इस तरह की. हाँ, ये भी स्ट्रैटेजी. 60K 499 से लेके 60K है. जब से कि आता MX में भी, be yourself, be true, be confident, and the most important thing, you best foremost in an interview. Presentation is most important. The more you are presentable, the more chance of cracking job with this. Very true. Dressing is what makes the first impression, and as people say, first impression is the last impression. Definitely, 110%. Because the way you enter to the HR room, on that way you are judged. 1% only. In 1%, once you enter the room, you are judged. So you should be presentable. You should be properly matched clothes. If you are wearing a black belt, you should wear a black shoe with it. That's very confident, because that's two are the best things for you. That's all. For your viewers. Be presentable, be confident. That's it. Thank you so much for that wonderful tip. I think that will that's very important. So, agar one more question that's coming in my mind, if somebody contacts you for a HR role, let's say, for to get a job in Aditya Birla, what kind of package range does it offer? See, that's something which I cannot directly say, because there are a lot of packages available. After there's an interview, it goes to the higher authorities. They check their CVs, they do cross checking and everything. After that, it's decided. So that's something which cannot be discussed right now. So that's on the basis of the personal qualifications, presentable things and everything. And then after that, we managers, senior managers, and then we come to the package and everything. So that's completely decided of decision and everything. अच्छा, तो your role is the first step. ये बात की चीजें होती है, HR वगैरह की चीजें हैं कि कितना क्या पैकेज ऑफर करेंगे, ये करेंगे, but to test and recruit and train them is part of your job profile, correct? Yeah, because first I take the interview. After that, CV goes to the manager. He sees the CVs, because in a day there are around 20 come for an interview. So all the CVs go to the manager. They see who are very best qualified for the job. They get a call, and after that they can report everything. Amazing. Thank you for such a detailed process interview for both, actually, for American Express as well as Aditya Birla. And these are two very big names that you have associated yourself with. So congratulations for that from me. And that's beautiful. So I'll post your number with the viewers. So that's how I do. Okay, so you I myself love yeah, so you saw my profile on LinkedIn, and from LinkedIn you went to YouTube and you saw a video. Which video was it that you saw, and which made you think, yeah, I want to share my experience? It was same video. It was same like a experience video only. A journey of a woman in a popular field. I don't exactly remember the name of that field, that job exactly, but I liked the video. So I directly went to the video and I directly applied for every post that you applied for, like your Telegram channel and everything. I done each and everything. Achha, so you are part of the Telegram channel? I am part of everything. Wow. With you,
it's a very nice journey with you. Your videos were amazing, which I saw. Thank you so much. And actually, I am trying my best to scale. And people like your people like you who support me are I feel indebted to them. So thank you so much. I just want to make sure the reach gets to the maximum. So that can only be possible if people like, share, and subscribe to the videos, and join the Telegram channel, of course, so that they don't miss out on any updates. Definitely. It's a nice opportunity to learn and grow. So the more people like, share, subscribe, the more they will learn and grow. So definitely do like, share, and subscribe Atharva's channels. It's amazing for you all. Thank you so much, Mohit, for your kind words and encouraging everyone for the opportunities that are available. Thank you so much.